अच्छा, अब हम अपने अगले सेशन की तरफ जाएँगे जो है ज़कात MIS के ऊपर। सो होपफुली ये थोड़ा इंटरैक्टिव भी होगा। तो शहज़ाद साहब आपको ये हमारे जो पहला कोहोर्ट था उसको इन्होंने अटेंड भी किया है इस कोर्स के। सो ही इज़ गोइंग टू प्रेज़ेंट ऑन दिस एंड देन आपके अगर क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसका भी हमारे पास टाइम होगा। थैंक यू, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप लोगों का सेशन अच्छा जा रहा होगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट जो कोर्स था उसमें थे, तो लेकिन सेकंड कोर्स का पता चला है थोड़ा सा मज़ीद सख्त किया उन्होंने। ओके। जी जी, सही। माय नेम इज़ मोहम्मद शहजाद, फ्रॉम ज़कात एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, खैबर पख्तूनख्वा। Today, I am here to present practical demonstration on Zakat Management Information System. First of all, I will present what is the mandate of our department, and then I will explain what was the traditional beneficiary selection system that have been adopted by our department previously, and then after that, I will present what is the digital beneficiary selection system that is currently adopted by Zakat and Ushur Department, Khyber Pakhtunkhwa. And then we'll explain little bit what is the impact of this digital system on our department. And at the end of my presentation, I will give some just clicks on ZMIS and we'll go to the live for practical demonstration. Basically, our department cover 5 different dimensions of social protection that is included. The first one is Guzara allowance, which is a in cash assistance and given to the person at the rate of 12,000 per person per annum. And the second one is marriage assistance that is given to the needy woman at the time of their marriage at the rate of rupees 30,000 once. And the third one is educational stipend, which is categorized into 2 different categories. The first one is academic and the second one is professional degrees. The rate for academic degrees is 1,500 per month per student, while the rate for the professional degree of stipend is 2,000 per month per student. The fourth one is in-kind assistance, which is given to the vulnerable person in the form of medical treatment. Here we also cover 2 different categories. The first one is outdoor patient and the second one is indoor patient. The maximum cap for the indoor patient is 8,000 per visit. It means that the one person will get maximum 8,000 medication per visit, and the outdoor patient will get 4,000 medication about that. And the last one is Dini Madaris. It is also a type of educational scholarship which is given to the needy students of Dini Madaris. It also included 2 different categories. The one is residential and the second one is non-residential. The rate for the residential student is 1,500 per month, while the rate for non-residential student is 1,000 per month. अब हम देखते हैं कि हमारा जो मैंने अभी बात बताई अपने आउटलाइन में कि हमारा एक ट्रेडिशनल सिस्टम था जिसको हम अडॉप्ट कर रहे थे, डिपार्टमेंट ने अडॉप्ट किया। देन हम फिर जो है ना डिजिटल सिस्टम की तरफ आए। तो पहले तो हम देखेंगे कि प्रोस एंड कॉन्स उस ट्रेडिशनल सिस्टम के क्या थे, थोड़े से शॉर्ट ओवरव्यू देख लेते हैं, देन कि जिसको ओवरकम करने के लिए हम अपने डिजिटल सिस्टम की तरफ आए। तो अगर हम देखें अपने ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर जो हमारी बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन होती थी, जो उनकी सिलेक्शन होती थी, वो टोटली बेस्ड ऑन मैनुअल रजिस्टर्स थी। यानी कि हमारे जो लोकल ज़कात कमेटी के मेंबर्स हैं, लोकल ज़कात कमेटी के चेयरमैन्स हैं, उनकी बिहाफ पे होता था किसको रजिस्टर करना है, किसको रजिस्टर्ड नहीं करना। जो उन्होंने एक वर्ड कह दिया, वो हमारे लिए हर्फ़ आखिर। उसके आगे हमें कानून इजाज़त नहीं देता था कि हम उसके ऊपर कुछ बात कर सकें, उनको कह सकें कि ये बंदा एलिजिबल है या नहीं है। और जिसकी वजह से हमारे पास 2 बहुत बड़े ड्रॉबैक आ रहे थे। नंबर 1 इज़ वो मैनुअल सिस्टम था
जिसकी वजह से हमारे पास जो डाटा था किसी भी मुस्तहिक के बारे में, किसी भी बेनिफिशियरी के हवाले से, वो वेरी लिमिटेड था। यानी कि उसका नेम, फादर नेम, CNICN एड्रेस एंड देन नथिंग एल्स। कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसका घर-बार कैसा है, उसकी इनकम कितनी है, उसके रिसोर्सेज़ कितने हैं, उसके एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती थी प्रीवियसली। और अगर हम एज़ फार एज़ दी ज़कात पेशेंट रिकॉर्ड इज़ कंसर्न्ड, अगर हम उनको देखें, तो उसके अंदर हमारे पास जो प्रीवियसली ये रिकॉर्ड होता है कि एक पेशेंट आया हॉस्पिटल में, उसने ट्रीटमेंट करवाई, उसके ऊपर 4000 एक्सपेंस आ गया, देन फिनिश्ड। अब वो 4000 कहाँ पे खर्च हुआ, किस-किस तरह खर्च हुआ, उस 4000 में उसको मेडिकेशन कौन-सी दी गई, टेस्ट कौन से करवाए गए, इसका कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था हमारे पास। और ये जितनी भी सारी जजमेंट थी, सिलेक्शन थी, ये सारी की सारी बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट। यानी कि जिसमें अगर हम देखा जाए कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर खास करके नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा हद तक इसके अंदर आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि हमारे पास ये जो पर्सनल जजमेंट है, मैनुअल सिस्टम है, इसको हम ख़त्म करें और एक डिजिटल सिस्टम और एक ट्रस्ट वाले सिस्टम की तरफ हम मूव कर सकें। तो उसके लिए हमने 2019-20 में ये इनिशिएटिव लिया। इट मीन उस टाइम हमारे पास कोविड भी था, लेकिन कोविड के दौरान ही हमने ये सारा सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि हमारे पास जो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, हमें उसको जो है ना वो ओवरलैप करना चाहिए, उसको रिप्लेस करना चाहिए किसी एक और ऐसे सिस्टम के साथ, जिसके अंदर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज़ का डाटा कलेक्ट कर सकें। तो उसके लिए हमने एंड्रॉयड और वेब बेस्ड सिस्टम बनाए। एंड्रॉयड हमने ऐप बनाई, जो हमारा जो एंड यूज़र समझ लें या हमारे जो एंड ऑफिशियल्स हैं, उस एंड्रॉयड ऐप के थ्रू मुस्तहिकीन की रजिस्ट्रेशन करते हैं। और इसके साथ-साथ हमने वेब बेस्ड सिस्टम भी बनाया, ताकि जहाँ पर अवेलेबिलिटी हो तो वो वेब के थ्रू भी उनकी रजिस्ट्रेशन कर सकें। और ये इंशाल्लाह भी इन सारे की डेमोंस्ट्रेशन आगे आप प्रैक्टिकल लाइव देखेंगे, जस्ट ये सिर्फ बातें नहीं है, स्लाइड्स तक जो है ना वो नहीं है। इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली भी इन सारे पोर्टल्स को देखेंगे। अब इस जो एंड्रॉयड और वेब बेस हमने जो सिस्टम बनाए, उसका जो सबसे पहला हमें फ़ायदा ये हुआ कि हम इस काबिल हो गए कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकें, ठीक है? और इसके साथ-साथ हम जस्ट उसकी सिर्फ पर्सनल नेम, फादर नेम, CNIC ये नहीं, बल्कि हम उसका फाइनेंशियल स्टेटस और उसका सोशल स्टेटस भी हम उसके साथ-साथ रिकॉर्ड कर सकें। देन उसके बाद हम ने जो है ना देखा कि हमारे जो हॉस्पिटल्स में वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसके लिए हमने एक अलहदा से स्टैंड अलोन ज़कात हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया, जिसके अंदर हम जब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एंटर होता है और देन हॉस्पिटल से आउट होता है, उस तक जितनी उसके ऊपर एक नीडल तक का जो एक्सपेंस होता है, वो भी हम इसके अंदर उसका रिकॉर्ड करवा रहे हैं, ताकि हमारे पास उसकी एक्सपेंडिचर की हिस्ट्री और इसके साथ-साथ उसका विज़िट्स की हिस्ट्री हिस्ट्री के वो 1 वीक में, 1 मंथ में, 1 साल में एक पेशेंट कितनी बार हॉस्पिटल को विज़िट किया और किस-किस डिज़ीज़ के साथ उसने वहाँ पर आके अपने आप को रजिस्टर किया एंड देन मेडिकेशन ली, वो सारा रिकॉर्ड हमारा ZHMIS के अंदर मेंटेन हो रहा है। और इस तमाम दोनों तीनों चीज़ों की वजह से हमारे पास एक कम्प्रिहेंसिव डिटेल डेटाबेस बना, जो ज़कात के बेनिफिशियरी जिसके अंदर इंक्लूड है, उसके अंदर तकरीबन ऑल टाइप ऑफ जो वल्नरेबिलिटी की कैटेगरीज़ हैं, उसके अंदर हमारे पास इंक्लूड है। ये कम्प्रिहेंसिव डेटाबेस हमारे पास बन गया। और फिर इस डेटाबेस के अंदर हमने रिपोर्टिंग इंक्लूड की, जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी डेटाबेस का, कि हमारे पास डेटा तो आ गया, अब इस वो डेटा हमें रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है? तो उसकी रिफ्लेक्शन के लिए हमने इसके अंदर रिपोर्टिंग मॉड्यूल्स डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हमने बनाए, ताकि हमें डिफरेंट लेवल्स पे, प्रोविंशियल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल ज़कात कमेटी लेवल पे हमें रिपोर्ट्स मिल सके कि किस एरिया में कौन सी चीज़ ज़्यादा डोमिनेंट है और कहाँ पे किस चीज़ की कमी आ रही है। तो अब अगर देखा जाए तो ये सिस्टम तो हमें बन गया कि इसकी जनरलाइज इम्पैक्ट तो डेफिनेटली बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट से मैं ये बात बता रहा हूँ कि बेसिकली जो सबसे पहला हमारा इम्पैक्ट हुआ कि हमने देखा कि इसकी वजह से पिछले तकरीबन 3 सालों से हमने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है ना हमारे डिपार्टमेंट के अंदर इस सिस्टम की वजह से आई है। और इसके साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट था कि जब मैनुअल सिस्टम था, तो मैनुअल सिस्टम में मैंने कर दी, रजिस्ट्रेशन कर दी, लेकिन उसके बाद तकरीबन प्रोसेस कंप्लीट होने में 2-3 महीने लग जाते हैं। मुझे मेरी एप्लीकेशन का ट्रैक रिकॉर्ड का नहीं पता लग सकता था कि आज मेरी एप्लीकेशन किस लेवल पे है। तो उसके लिए हमने ज़कात बेनिफिशियरी सर्च पोर्टल भी बनाया कि आज मैंने अगर रजिस्ट्रेशन की,
तो मैं 2 दिन बाद, 10 दिन बाद जाके वहाँ पर अपना सीएनईसी सर्च करूँगा, तो वो मुझे करंट स्टेटस मेरी एप्लीकेशन का बताएगा कि आज की डेट तक आपका जो एप्लीकेशन है वो उसकी जो प्रोसेसिंग हुई, वो किस लेवल पे है। आया कि आप सिलेक्ट हो, अप्रूव्ड हो, रिजेक्ट हो, वो मुकम्मल स्टेटस उसको बताता है। इट मीन्स कि हमने जो सबसे पहला ट्रांसपेरेंसी इस सेंस में आई कि जो हमारा एंड यूज़र था जिसने अपने आप को रजिस्टर्ड किया एक गवर्नमेंट इदारे के साथ, उसका ट्रस्ट डेवलप हुआ कि हाँ, वाक़ई मैंने एप्लीकेशन दी, मेरा डाटा रिकॉर्ड किया गया और मेरा डाटा इस वक़्त इस लेवल पे पड़ा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इस चीज़ में हमने अचीव की, वो ट्रस्ट डेवलपमेंट थी मुस्तहिकीन लोगों की। देन उसके बाद हमने इसी डेटाबेस की वजह से पहले हम सिर्फ जस्ट उनकी जो है ना पर्सनल डिटेल ले रहे थे। अब हम उनको एक्सेस करने के लिए क्योंकि आगे आप देखेंगे कि हमने भी जस्ट लाइक बीएसपी स्कोरिंग बेस्ड, पीएमटी बेस्ड हमने प्रोफार्मा डिज़ाइन किया कि जो पर्सनल जजमेंट या पर्सनल इंटरवेंशन को रिड्यूस करता है। तो उसके लिए हमने उसका फाइनेंशियल स्टेटस की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन एक मुस्तहिक का कंप्लीट प्रोफाइल हम बनाने के काबिल हुए कि हमने उसके अंदर उसका फाइनेंशियल स्टेटस और उसका सोशल स्टेटस इंक्लूडिंग इन ईच एंड एवरीथिंग हमने उसका एक प्रोफाइल डेवलप किया जिस प्रोफाइल की बेस पे किसी भी मुस्तहिक की आगे सिलेक्शन होती है फॉर ज़कात पेमेंट। देन उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था कि हमने इसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन को रिड्यूस करने की कोशिश की। अब इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि डाटा तो आप उन्हीं लोगों से ले रहे हैं, वही जो पुराने लोग थे, लोकल ज़कात चेयरमैन थे, वही दे रहे हैं, तो इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन रिड्यूस कैसे हुई? तो उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट ने ये स्टेप लिया कि अगर एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर हमें 10 लोगों को हमने ज़कात पेमेंट करनी है, तो हम उनसे सिर्फ़ 10 लोगों का डाटा नहीं ले रहे थे, हम उनसे 50 लोगों का डाटा ले रहे थे। ताकि 5 टाइम हम उनसे ले रहे थे, जिसकी वजह से अब जिसने एंट्री करवाई, उसने 50 लोगों का डाटा दे दिया। अब उसके बाद उन 50 लोगों में से किसको पेमेंट मिलनी है, ये टोटल कंप्यूटराइज़ सिस्टम है। यानी कंप्यूटर उनको जज करता है, उनके फाइनेंशियल स्टेटस को, उनके सोशल स्टेटस को और उसके बाद उनको स्कोरिंग पीएमटी बेस्ड स्कोरिंग होती है और उन स्कोरिंग की बेस पे वो 50 में से जो सबसे मोस्ट वल्नरेबल होते हैं, वो 10 बंदे सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह हमने जो ह्यूमन इंटरवेंशन थी, वो मुकम्मल कंप्लीटली 100% तो हम क्योंकि इस कम्युनिटी में रह रहे हैं, वहाँ पर हम इंसानों को बिल्कुल जो है ना डिलीट तो नहीं कर सकते। लेकिन किसी हद तक हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो रिडक्शन के लिए हमने ये मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया। देन उसके बाद हमने एक कैटेगोरिकल डेटाबेस बना लिया जिसके अंदर हमारे पास ऑल टाइप ऑफ डिफरेंट जो कैटेगरीज़ हैं, किसी भी वल्नरेबिलिटी होने के लिए जो हो सकती हैं, उनकी बेस पे हमने रिपोर्टिंग बनाई है, वो आगे आप देख सकेंगे इंशाल्लाह। ये तो था जस्ट उसका कुछ ओवरव्यू। अब हम आते हैं उस सिस्टम की तरफ कि वो सिस्टम है क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमारे सिस्टम के जो वो यूज़र्स हैं, वो 2 डिफरेंट तरह के यूज़र्स हैं। हमारे कुछ डायरेक्ट यूज़र्स हैं हमारे सिस्टम के, कुछ इनडायरेक्ट यूज़र्स हैं। यहाँ पर एक बात मैं मेंशन करना ज़रूरी समझूँगा कि यहाँ पर जो स यूज़र्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो आम जनरल पब्लिक नहीं है। वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं। क्योंकि ये ऑफिशियल सिस्टम है तो इसलिए हमें अभी तक इसको जनरल पब्लिक के लिए ओपन तो नहीं किया, लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जो ज़कात डिपार्टमेंट के साथ, ज़कात के सिस्टम के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैच्ड हैं, उनके लिए हमने ये मुकम्मल यूज़र उनके डैशबोर्ड वगैरह डेवलप किए हैं। तो अगर हम देखें हमारे पास जो डायरेक्ट यूज़र्स हैं, उनके अंदर हमारे पास जो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बैकबोन जिसको हम कह सकते हैं, ज़कात डिपार्टमेंट में बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर हमारे फील्ड क्लर्क जो तकरीबन ऑल ओवर केपी 421 लोग हैं, उनके लिए हर एक के लिए हमने अलग-अलग से डैशबोर्ड डेवलप किया, जिसके ऊपर वो अपनी रजिस्ट्रेशन करता है। जिस तरीके से अगर हम बीएसपी को देखेंगे, उन्होंने कम्युनिटी बेस्ड डिफरेंट टीचर्स को हायर करके वहाँ से डाटा कलेक्शन करवाई। तो हमारे पास ये परमानेंटली हायर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 421 फील्ड क्लर्क हैं, जिनको ज़रिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम लोकल ज़कात चेयरमैन्स। तो हमने ट्रांसपेरेंसी लेवल के लिए कि एक बंदा जो डाटा एंटर कर रहा है तो वो भी तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना कि मैंने डाटा एंटर किया तो आया कि मैं ठीक किया गलत किया और कल उससे पूछा भी जा सके। उसके लिए हमने 421 से हर एक के लिए डैशबोर्ड डेवलप किए ताकि उसके ऊपर वो अपने जितने लोकल ज़कात कमेटीज़ उसके साथ अटैच्ड हैं, वहाँ पर उसको उनका स्टेटस शो हो रहा होता है। हर एक लोकल ज़कात कमेटी में उसने कितने लोगों को एंट्री की, कितने लोगों को आगे पेमेंट का प्रोसेस चलाया, मुकम्मल ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल होता है, जितने भी हमारे पास 421 फील्ड क्लर्क हैं। ताकि अगर कहीं पे भी किसी जगह पे भी हमें डाटा रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में कुछ जो है ना वो
प्रॉब्लम नज़र आए तो हम उनको ट्रैक कर सकें और रेलेवेंट बंदे तक पहुँच सकें। देन उसके बाद हमारे पास जो ऑडिट स्टाफ, ये मेरे ख्याल में आई थिंक फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हमने ये एक सिस्टम बनाया है जिसके अंदर हमने ऑडिट मैकेनिज्म को मैनुअल के साथ-साथ डिजिटल सिस्टम करवा दी है। ये नहीं कि ऑडिट तो हर डिपार्टमेंट में होता है, लेकिन वो अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइलों तक महदूद है, लोकल सिस्टम पे मैनुअल सिस्टम है। हमने ये किया कि हमने अपने जो हमारे पास ऑल ओवर केपी 100 ऑडिट स्टाफ है, 100 लोग हैं, उनके लिए हमने डैशबोर्ड बना दिए हैं। हमने उनको कहा कि ठीक है, आप अपना मैनुअल जो प्रोसेस है ऑडिट का वो चलाएँ, वो रखें। लेकिन हमने हर एक पे जो रजिस्टर्ड मुस्तहिक था उसका कंप्लीट प्रोफाइल बनाया, हमने सिस्टम पे ऑनलाइन अवेलेबल करवाया। हमने कहा कि आपने जो मैनुअल ऑडिट किया, उसकी रिफ्लेक्शन आपने सिस्टम के अंदर भी करनी है। ताकि कल अगर मैंने अप्लाई किया ज़कात के अंदर और मुझे पैसे नहीं मिले, तो मैं ये नहीं करूँगा कि मैं जाके सिटीज़न पोर्टल पे कंप्लेंट करूँगा और पूरे जो है ना वो 2 महीने इंतज़ार करूँगा मुझे उसका रिस्पॉन्स आए। हमने सर्च पोर्टल जो अवेलेबल किया, उसके ऊपर जाके मैं जस्ट अपने सीएनआईसी एंटर करूँगा, मुझे उसका स्टेटस आ जाएगा कि आपको पेमेंट नहीं मिली, तो आप ऑडिट प्रोसेस के दौरान रिजेक्ट हुए थे और इस ऑडिट ऑब्जर्वेशन की वजह से रिजेक्ट हुए। यानी कि उसको अपना जिसकी वजह से रिजेक्ट हुआ, वो रिजेक्शन रीज़न भी हम साथ उसको बता रहे हैं, ताकि जो है ना वो मुस्तहिक को पता लग सके मुझे पैसे नहीं मिले, तो किस वजह से नहीं मिले। अगर मुझे पैसे अभी तक नहीं मिले, मैं अप्रूव्ड हूँ, तो वो उसका स्टेटस अलहदा से बता देता है। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर जो पाकिस्तानी सिटीज़न्स हैं, उनका जो ट्रस्ट डेवलपमेंट है गवर्नमेंट इदारों के ऊपर, वो बहुत कम है। तो उसको हमने इम्प्रूव करने के लिए एक एक्सपर्ट ऑडिट का भी लगाया ताकि उसको हमने डिजिटल कर दिया है। इसी तरीके से हमने जो हमारे पास तकरीबन 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर्स हैं, उनके लिए डैशबोर्ड बना दिया। यानी कि जब हम प्रोविंशियल लेवल पे जो फंड जाता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेट्स से एबटाबाद लेता हूँ। एबटाबाद को एक फंड चला गया 50 करोड़ रुपए का कि आपने इस ईयर में 50 करोड़ रुपए डिस्बर्स करने हैं। अब इससे पहले क्या था कि वो सारा डाटा जो था वो फाइलों के अंदर में फाइलों तक महदूद होता और यहाँ से अगर प्रोविंशियल लेवल पे क्वेश्चन जाता कि हमें एबटाबाद में जो है ना फलां लोकल ज़कात कमेटी है उसका हमें डाटा प्रोवाइड किया जाए, उसमें कितने लोगों को पेमेंट हुई, कितना फंड गया, कहाँ तक गया। तो अगले हम 10 दिनों तक वेट करते थे कि वहाँ से रिप्लाई आए। लेकिन उस चीज़ को हमने ओवरकम करने के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर्स के डैशबोर्ड बना दिए, जिसके ऊपर जितना 50 करोड़ का फंड गया, उसकी मुकम्मल डिजिटल ट्रांज़ैक्शन उसके ऊपर मौजूद होती है उनके डैशबोर्ड पे। 50 करोड़ का फंड आया, आपने किस-किस कमेटी को कितना-कितना फंड दिया, वो जस्ट 1 क्लिक अवेलेबल होता है हमारे पास अब। इन डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर के डैशबोर्ड के थ्रू। देन उसके बाद हमने जो लास्ट अभी मैंने आपको बताया था ज़कात के जो पेशेंट रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हमने 26 प्रोविंशियल लेवल हॉस्पिटल्स हैं, उनके हमने डैशबोर्ड बनाए हैं, जिसके ऊपर हम ज़कात के पेशेंट्स हैं, उनका कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। इसके बाद जो अभी मैंने ज़िक्र किया था इनडायरेक्ट यूज़र्स का, तो इनडायरेक्ट यूज़र्स हमारे पास जो हैं वो लोकल ज़कात चेयरमैन हैं, जो ऑल ओवर केपी 4400 के लगभग हैं और फिर उन लोकल ज़कात कमेटीज़ के जो मेंबरान हैं यानी 40,000 यानी कि अगर आप देखें तो ये जो 40,000 का फिगर्स है, ये ऐसे लोग हैं जो इनडायरेक्टली हमारे ज़कात डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट हैं और यही वो लोग हैं जो हमें कम्युनिटी बेस्ड डाटा कलेक्ट करके देते हैं। तो उनकी भी हमने मुकम्मल ट्रैक रिकॉर्ड रखा हुआ है कि किस लोकल ज़कात चेयरमैन ने किस एफिडेविट के साथ कहाँ से कौन-सा सीएनईसी हमें प्रोवाइड किया, इतना तक हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया तक ताकि अगर कोई कहीं पे जो है ना वो इर्रेगुलरिटी देखी जाए तो हम उसको ट्रैक कर सकें। अब ये तो हो गया हमारे सिस्टम का एक जस्ट ओवरव्यू। अब हम देखते हैं कि आज तक चले सिस्टम तो हमने बनाया, सिस्टम तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत से बनते हैं, लेकिन अब उस सिस्टम ने किया क्या? तो वो थोड़ा-सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तकरीबन इन 3 सालों में हमने मोर देन 0.6 मिलियंस का डाटा कलेक्ट किया है हमने आज तक, जिसके अंदर अगर हम मेल फीमेल की रेशियो देखें तो हमारे पास 54 एंड 44 बन रही है। मेल फीमेल की रेशो और इनके अंदर अगर हम सीनियर सिटीजन्स को देखें तो मोर देन 1.2 लाख हमारे पास सीनियर सिटीजन्स रजिस्टर्ड हुए हैं। अब अगर हम इस पूरे डाटा को कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो हमारे पास जो टोटल कैटेगरीज बन रही हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, विडोज़ हैं, ऑर्फन्स हैं, पीडब्ल्यूडीज़ हैं, जनरल पुअर्स हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके तकरीबन फैक्ट्स एंड फिगर आपको नज़र आ रही है। हमारे पूरे डेटाबेस की एक जस्ट क्लिक है कि इसके अंदर कौन-सी कैटेगरी के कितने-कितने लोग अवेलेबल हैं।
अब अगर हम जब PWDs की तरफ आते हैं तो आगे उनकी फर्दर कैटेगराइजेशन होती है, तो उनको हमने मजीद फर्दर कैटेगराइज करके फिजिकली, इंटेलेक्चुअल, विजुअल एंड हियरिंग इम्पेयर्ड के भी हमने कैटेगरीज डेवलप की हैं, ताकि हमें अलग-अलग से स्पेसिफिक कैटेगरी का पता लग सके कितने लोग किस एरिया में कहाँ-कहाँ पर मौजूद हैं। सर ये आपको ट्रांसजेंडर वगैरह क्या अलाउ करते हैं, ऑपरेटर नहीं फील हो सकता है इसमें? तो ट्रांसजेंडर कोई वल्नरेबल है, बेचारे हैं ही वल्नरेबल है, लेकिन कैसे रह बेसिकली उनको अलाउ होता है, लेकिन अभी तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए कोई ट्रांसजेंडर नहीं आया। मैडम उसका एक प्रोसेस ऐसा है कि जो रिकमेंडेशन हम लेते हैं वो हम लोकल चेयरमैन से लेते हैं, जबकि ट्रांसजेंडर्स के अपने एक वो गुरु से कुछ उनके होते हैं, वो बताते हैं कि कौन किस हद तक है। सो हमारे एक्ट में फिलहाल वो प्रोसीजर अभी नहीं अडॉप्ट हुआ है, अदरवाइज सोशल वेलफेयर उस पर काम कर रहे हैं। हमारे पास वल्नरेबल तो है, लेकिन उनके लिए कहीं पे नहीं होती, कुछ इस पे बात हो रही है, इस पे बात हो रही है। जी जी प्लीज। सही। तो ये जस्ट ओवरव्यू, अभी इसको हम आगे जाके लाइव देखते हैं। और इसके बाद ये ज़कात बेनिफिशियरी सर्च पोर्टल का वो क्लिक्स है, ये चीज़। ये बेसिकली हमारा वो जो गुज़ारा अलाउंस परफॉर्मा है, जिसकी बेस के ऊपर हम ये सारा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। जो भी आपने देखा तकरीबन 6,66,000 का डाटा हमने कलेक्ट किया, वो इस प्रोफार्मा के ऊपर की है। और इसके अंदर हमने अपनी हर मुमकिन कोशिश की कि जो ज़कात से रेलेवेंट जितने पैरामीटर्स हों, वो हमने इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की है। और इन्हीं ही पैरामीटर्स के ऊपर हमने फिर PMT स्कोर लगाया है, जिसकी बेस पे किसी भी बेनिफिशियरी की सिलेक्शन होती है। अब उसके बाद जो हमारे पास सबसे जो मेन इशू था कि हम किस तरीके से जो लोकल ज़कात चेयरमैन है, जो ऑलरेडी वैसे भी पॉलिटिकल लोग होते हैं, उनको हम कैसे करें, रोकें कि वो गलत लोगों की एंट्री या गलत लोगों का डाटा हमें ना दें, या अपने चाचे मामे या इस तरह उन लोगों का डाटा ना दें। तो उसके लिए हमने ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया कि जब हम उनसे, फॉर एग्जांपल एक हमारा फील्ड क्लर्क है, वो अपने लोकल ज़कात चेयरमैन से 20 बंदों का फॉर्म ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमने कहा कि आप जरा एक बयान हल्फी भी हमें साथ दे दें, जो ये अभी आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसके अंदर जो लोकल चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, इंक्लूडिंग जो 7 लोकल ज़कात कमेटी के मेंबरान है, सब के ऊपर साइन होते हैं। और वो यहाँ पर हल्फन इकरार करते हैं कि जो हमने ये डाटा आपको प्रोवाइड की है, वो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मोस्ट वनरेबल थे हमारे मोहल्ले के अंदर या हमारे गाँव के अंदर। तो मेरे ख्याल में एक इंसान इस हद तक ही कर सकता है, अब आगे तो इससे ज़्यादा हम उनसे वो मज़ीद कस्में नहीं उठवा सकते। तो हमने इस हद तक कोशिश की कि उन लोगों को जो है ना वो बाउंड किया जा सके कि वो गलत लोगों का डाटा ना दें। तो अब जब ये फॉर्म हमारे पास एक हार्ड फॉर्म में आ जाता है, तो उसका हमने फिर एक डिजिटल रिकॉर्ड भी रखा है कि हमारे पास अगर लोकल ज़कात चेयरमैन है, उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास डिजिटल होना चाहिए। तो उसके लिए हमने मोबाइल ऐप एक बनाई थी, जिसको आप यहाँ पर मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि इस फॉर्म के थ्रू हम इन लोकल ज़कात चेयरमैन का डाटा कलेक्ट करते हैं कि वहाँ पर उसके चेयरमैन का नेम, चेयरमैन के फादर का नेम, CNIC, उसके मोबाइल नंबर, उसने कितने फॉर्म दिए। अमूमन हमारे पास ये प्रॉब्लम आता कि एक बंदा रजिस्ट्रेशन में उसका नाम नहीं आया। फॉर एग्जांपल एक कमेटी में 10 बंदे थे और 9 बंदे एंट्री हुई। कल वो कंप्लेंट हमारे पास आती है और वो कहते हैं कि जो है ना मेरा नाम नहीं डाला। जब उसको हम ट्रैक रिकॉर्ड करते तो लोकल चेयरमैन तक, वो जो लोकल चेयरमैन कह रहा था कि मैंने फील्ड क्लर्क को फॉर्म दिए हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कि उनकी इंफॉर्मेशन करेक्ट हो, हमने यहाँ पर ये तक चीज़ रिकॉर्ड कर ली कि एक लोकल चेयरमैन हमारे ऑफिशियल्स को कितने फॉर्म दे रहे हैं, उस फॉर्म की एंट्री भी हम करवा रहे हैं कि 10 दिए, 5 दिए, 20 दिए, ताकि कल हम उनको सच झूठ के लिए हम आसानी से उसको ट्रैक कर सकें। और ये फिर आगे हमारे पास जो ग्रुप 60 का जो फील्ड क्लर्क है, उसका डैशबोर्ड है, जिस ऐप के थ्रू वो इस कंप्लीट रिकॉर्ड की एंट्री करता है। ये बेसिकली वो जो पीछे मैंने आपको फॉर्म दिखाया हार्ड में गुजारा अलाउंस का, ये उसका एक डिजिटल वो है, स्क्रीन है। इसके अंदर हम तकरीबन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को हम इंक्लूड करके हम उससे डाटा कलेक्ट करवा रहे हैं। और हमने कोशिश की कि असल में अमूमन क्या होता है कि सबसे वो लोग कहते हैं कि डिजिटल आपने किया, हर चीज़ लिखनी पड़ती है। तो हमने इसके अंदर तकरीबन अप टू 95% चीज़ें ड्रॉप डाउन में अवेलेबल करवा दी कि आपको इजीली ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करें और आगे चलते चले जाएं। और फिर हमने हर ड्रॉप डाउन को पिछले के साथ अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि ठीक है आपने मैनुअल किया, मैनुअल में गलती हो गई, हम उसको रेजर लगा के साफ कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, तो यहाँ पर गलती को हम कैसे ओवरकम करेंगे। तो उसके लिए हमने हर एक फील्ड को पिछली फील्ड के साथ कनेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल इनिशियली वो बंदा कहता है कि मैं जो है ना वो फीमेल सेलेक्ट की,
ठीक है। आगे जाके वो फीमेल से कोई उलट चीज सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक सिस्टम उसको पॉप अप देता है कि नहीं, आपने प्रीवियसली फीमेल सिलेक्ट किया, अब आप आगे जाके इस चीज को सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको ये वहां पर, या अगर वहां पर वो प्रीवियसली विडो सिलेक्ट करता है और आगे जाके जेंडर में मेल सिलेक्ट कर रहा है तो सिस्टम फौरन उसको रोक देगा। आपने प्रीवियसली कहा कि मैं विडो हूं लेकिन आप जेंडर में मेल सिलेक्ट कर रहे हो, तो ये दोनों आपस में कंट्रास्ट है, सेम नहीं है। लिहाजा इस तरह की हमने चीजें इसके अंदर ऑथेंटिकेशन लगाई ताकि हमें हमारी जो है वो हमारी जो प्रॉब्लम है, जो मिस्टेक्स हैं वो कम से कम हो सकें। जी प्लीज। जी जी। जी जी। बेसिकली जो गुजारा अलाउंस का है वो अगर स्टेज की हम बात करें तो हमारे पास जो जितना हम दे रहे हैं वो उसको पॉवर्टी से तो निकाल तो नहीं रहा। ठीक है, तो वो हम 12,000 पर एनम दे रहे हैं। तो जमील साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, मैं उसका इस तरह कह देता हूँ कि ये 3 साल हो गए इस सिस्टम को बने हुए। इससे पहले जो है ये 6,000 रुपये थे। जो हमारी नई कौंसल आई थी उन्होंने इसको डबल करके 12,000 कर दिया और ये हमारा 68% ऑफ द बजट होता है। ये 12,000 पर एनम है, 1,000 हो गया, 1,000 पर 500 मंथ। से 1,000 हो गया। और वो हमारा पिछले साल का जो है 758 मिलियन रुपीज़ इसके लिए हमने क्लब किए हुए थे एज पर द एक्ट के 68% हमने इस हेड में डालना होता है। और उस बेस पे हमने तकरीबन कोई आज के दिन तक कोई 63,000 लोगों को जो है वो पेमेंट दिए, विच यू कैन कॉल इट एज ए हाउस होल्ड। और ये ऐसा नहीं है कि इस साल दे दिया अगले साल नहीं देंगे। अगर दे आर अगेन डिजर्विंग एंड उनका स्कोर दोबारा आता है तो दे आर ऑल्सो अगेन गिवन द सेम थिंग एज वेल। और ये हर साल ये सर्वे होता है, उसी हिसाब से जो है लोग एड ऑन माइनस होते हैं। अच्छा, मुझे बताया गया कि मैं हाल 20 मिनट रह गए हैं क्योंकि थोड़ा सा शुरू भी हम लेट हुए थे। एक और क्वेश्चन है। जी जी प्लीज। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है कि ये जो 1,000 है इसमें आटा जो है वो 200 किलो हो गया है तो ये 5 किलो आटा जो है ना मेरा ख्याल है इसमें अच्छा, आएगा। आपकी बात बिल्कुल बजा है। हम खुद इसके ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है हमारे पास बजट ही इतना है, हम दे ही नहीं सकते और ज्यादा। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, मतलब है कि हम अगर इसको ज्यादा करें शेयर तो हमारे जो है ना, जो beneficiaries केपी का जो शेयर है वो कहते हैं उस शेयर से ज्यादा हम आपको पे ही नहीं कर सकते क्योंकि जितनी ज़कात का हमारा जो फंड आता है वो बेसिकली जो ज़कात कलेक्शन होती है नेशनल लेवल पे उसके थ्रू हमारे पास जो है ना ये भी फंड आ हमें रहा ज्यादा होता है। आता है। हम कलेक्ट 10% करते हैं, गवर्नमेंट हमें 16% दे रही होती है, तब जाके कहीं जाके हम इसमें देखिए अगर दो जो है ना अडल्ट हैं और 2 बच्चे हैं तो उसका जी। जो है 0.7 kg जो है ना वो पर डेफिनेटली। मील जो है ना आता है। जी जी। और इसको आप कैलकुलेट करें तो 30 kg जो है ना इससे थोड़ा सा ज्यादा बनता है पर मंथ। सही। 42 kg जो है ना ये बनता जी। है। तो ये जो है ना 5 किलो आटा खरीदेंगे एक महीने में। असल में फैक्ट्स एंड फिगर की तरफ अगर हम जाएंगे ना, फैक्ट्स एंड फिगर की तरफ, तो नाम भी इसको गुजारा दिया गया ना, मतलब कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेंस नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ बहुत है। अगर कि जो सबसे बड़ी रुकावट हमारे पास ये है कि जब भी हम गवर्नमेंट से बात करते हैं गवर्नमेंट कहती है हमारे पास और पैसे ही नहीं, हम इसको कैसे इंक्रीज करें। डेफिनेटली 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 बिल्कुल। जी जी सही। बेसिकली हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो हम फुली तो नहीं सोशल प्रोटेक्शन कर सकते ना, तो पॉप इन होता है। ये जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो पॉप इन कर रहे होते हैं कि जो खर्चे हैं उनमें से ऐड ऑन कर रहे हैं, तो 100% तो कोई भी नहीं कर सकता। सही। Thank अच्छा, you. अभी जिस तरह टाइम बता रहे हैं 20 मिनट है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आगे लाइव जो जाके जो है ना आपको लाइव थोड़ा सी डेमोन्स्ट्रेशन दी जा सके, तो मैं यहाँ से बस डायरेक्ट आगे चलता हूँ। बस ये रिपोर्टिंग का व्यूज है, इस तरह की रिपोर्टिंग अभी मैं लाइव ही दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, ये जो अभी मैंने आपको स्लाइड्स के अंदर दिखाया था ये हमारा फर्स्ट लुक है सिस्टम की, जिसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास एक PZA लॉगिन आपको नजर आ रहा है, देन डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, हॉस्पिटल, ऑडिट, ग्रुप सेक्रेटरी एंड मुस्तहिक सर्च। ये वो सारे हमारे डिफरेंट टाइप के डैशबोर्ड्स हैं जिनके लिए हमने अलग-अलग से लॉगिन बनाए हैं। अब जो अगर हम देखा जाए तो जो फंड का फ्लो है वो बेसिकली प्रोविंशियल ज़कात एडमिनिस्ट्रेशन से जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रोविंशियल ज़कात एडमिनिस्ट्रेशन का लॉगिन दिखा देता हूँ, उसके अंदर डैशबोर्ड।
तो अगर हम यहाँ पर लॉग इन हों तो हमारे पास इस वक्त जो करंटली प्रोविंशियल ज़कात एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टेटस है, अकाउंट नंबर PZF, यानी कि जो हमारा करंटली इस वक्त ज़कात डिपार्टमेंट के पास फंड आता है, वो यहाँ पर शो होता है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास जो मैनुअल, हमने कंप्लीटली मैनुअल सिस्टम को डेटो कॉपी करके उसको डिजिटाइज किया कि जब हमारे पास एक फंड आ गया 1 अरब रुपया गवर्नमेंट ऑफ KP को मिल गया, अब वो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सालाना इस साल हमने कितना डिस्पर्स करना है उसकी सिलेक्शन होती है। तो हम ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस फॉर्म के थ्रू हम उसकी ईयरली फंड सिलेक्शन और इंस्टॉलमेंट फंड सिलेक्शन हम इस फॉर्म के थ्रू करवाते हैं। और देन उसके बाद जब हमारा पूरे साल का फंड मुख्तस हो गया तो उसको हमने हेड वाइज डिवाइड करना होता है कि हेल्थ केयर के मद में हम कितना देंगे, स्पेशल हेल्थ केयर की मद में कितना देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स जो हैं उसकी मद में कितना आएगा, एंड देन रेगुलर ज़कात हेड्स के फंड में कितना आएगा। अगर कोई नेचुरल क्लाइमेटी है तो उसके लिए जो अभी आपको फैक्ट्स एंड फिगर नज़र आ रहे हैं, ये फॉर द ईयर 2021 एंड 22 के नज़र आ रहे हैं। उस तरीके से हम यहाँ पर उनको डिजिटली डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर जो सिस्टम की खूबसूरती के लिए, इससे पहले क्या था कि जितनी भी कैलकुलेशन थी वो मैनुअल होती थी। अब जब हमने रेगुलर ज़कात हेड की ये अमाउंट मुख्तस कर दी तो सिस्टम हमारा ऑटोमेटिकली इसको बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट उसको डिवाइड कर लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले वो गुजारा अलाउंस और ये 5 डिफरेंट हेड्स में डिवाइड करता है। देन हर एक डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन की बेस पे उसको उसका शेयर सिस्टम दे देता है। यानी कि आपको मैनुअल कैलकुलेशन का वो आंसर हमने मुकम्मल खत्म कर लिया। हमने बैक एंड पे एल्गोरिदम लगाया कि इस डिस्ट्रिक्ट की इतनी पॉपुलेशन है, इस डिस्ट्रिक्ट की इतने जो है ना वो लोकल ज़कात कमेटीज़ हैं, उसकी बेस पे आप उसको गुजारा अलाउंस, मैरिज असिस्टेंस, एजुकेशनल स्कॉलरशिप के हवाले से वो सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको डिवाइड कर देता है। हाँ, डेफिनेटली जस्ट हमने फंड एंटर किया, हमने उसको 2 अरब रुपया दिया, आगे सारा काम सिस्टम का है। फिर हमने हमारी इंटरवेंशन मुकम्मल खत्म हो गई। नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज कम होते जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि वो जो 2000 के 1500 वो तो देने ही देने जी, जी। नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज कम डेफिनेटली अगर हम डिपेंड करते हैं बेसिकली फंड के ऊपर। फंड ज्यादा हो गए नंबर ऑफ बेनिफिशियरी ज्यादा हो गए, फंड कम आए तो नंबर ऑफ बेनिफिशियरी कम हो गए। जी, जी, सीलिंग। जी, जी। जी, ठीक है। वो बेसिकली मोस्ट डिजर्विंग की आपने बहुत अच्छी बात की है। उसके लिए आपको जो प्रोफार्मा दिखाया गया था, उनके हर एक पैरामीटर के ऊपर स्कोर लगा हुआ है। जी, स्कोरिंग की हुई है। उसकी अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल, क्योंकि अभी वो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंशियल है, वो हम यहाँ पे शो तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं उसकी एग्ज़ाम्पल आपको दे देता हूँ। एक शख्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ। मैंने एंट्री अपनी करवाई और वहाँ से मुझे पूछा गया कि आपके मकान की हैसियत क्या है? कच्चा है, पक्का है, सेमी पक्का है? मैंने वहाँ पर सेमी पक्का लिख दिया, ठीक है? और मैं अगर कहूँ कि मेरे डिपेंडेंट्स कितने हैं, मैं कहता हूँ 5 हैं, ठीक है? इसी तरीके से आगे से मुझसे पूछा जाता है आपकी भेड़-बकरी है या माल-मवेशी, मैं कहता हूँ कोई नहीं। अब इसके अगेंस्ट एक और शख्स है, उसने अपने आप को सेमी पक्का के बजाय कच्चा मकान लिखा। तो अब डेफिनिटली वो मोस्ट डिजर्विंग होगा, उसका स्कोर कुछ और होगा, मेरा स्कोर कुछ और होगा। तो इसकी बेस पे PMT स्कोरिंग सिस्टम करता है और वो जो मोस्ट डिजर्विंग होता है वो उसको टॉप पे ले आता है। डाटा की वेरिफिकेशन है, आप ही कमिटीज करती हैं जो आप लोगों को जी, जी, मैं Audit मैं officer. बोल रहा है उनके ना वो सब वाली बात पे आते हैं बंदे की अपनी जिम्मेदारी जी, नहीं है। मैं उसी की ये तरफ cross verification जो मैं है, उसी की तरफ जी, जी। जी, जी। मैं वही करता हूँ। सही। बेसिकली जो स्कोरिंग का मैकेनिज्म था, इनिशियली हमने उसका फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया है। देन उसके बाद हमने कुछ JIZ की ही हेल्प के थ्रू हमने कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स लिए थे और एज़ लॉन्ग एज़ इसके साथ-साथ हमने BISP के जो एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने स्कोरिंग का कंप्लीट क्राइटेरिया बनाया था, उनके साथ भी हमने डिस्कशन की। देन उसके बाद इन स्कोरिंग को फाइनलाइज़ किया गया। अब अगर जस्ट मैं रिपोर्टिंग पे आ जाता हूँ, ये अगर आपको रिपोर्टिंग यानी कि लाइव रिपोर्टिंग, अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट तोरगार में बैठ के एक बंदा अगर इस वक्त गुजारा अलाउंस के अंदर एंटर हो जाता है तो सिस्टम जस्ट विद इन अ मिनट यहाँ पर हमें उसका स्टेटस अपडेट कर देगा कि इस वक्त आपके पास 1,21,901 बंदे हो चुके हैं आपके डेटाबेस के अंदर। ये रिपोर्टिंग हमारी यहाँ पर लाइव रिपोर्टिंग चल रही है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो आपने डिफरेंट पैरामीटर्स देखे थे जो भी आपको फार्म के अंदर नजर आए थे, यानी कि वाटर यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी कवरेज, होमलेस, अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड एंड फ्यूल कवरेज। इसके अगर आप देखें तो हमने कहा था, उनसे पूछा वाटर यूटिलिटी के आगे हमने 4-5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। आया आपके पास गवर्नमेंट का वाटर सप्लाई है, अपना बोर है,
या कम्युनिटी का बोर यूज कर रहे हैं, ओपन डक वेल या रिवर पॉन्ड वगैरह से, आपके पास पानी की फैसिलिटी है ही नहीं, तो ये उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पर नजर आ रही है कि अगर ड्यूरिंग 21-22 के अंदर 29,000 लोग ऐसे थे, तकरीबन 30,000 लोग जिन्होंने कहा हम गवर्नमेंट से के वाटर हमें सप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो 7,600 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमारे पास पानी की फैसिलिटी है ही नहीं, इवन के हमें रिवर पॉन्ड भी अवेलेबल नहीं है, हमें उससे भी बहुत दूर जाकर पानी को जो है ना एक्सेसिबिलिटी करनी पड़ती है। तो इस तरीके से अब अगर इसी को खूबसूरती है कि अगर यहाँ पर उस सिस्टम में बैठ के तोरगर के अंदर एक बंदा अपने डैशबोर्ड से एंट्री करता है तो उसकी यहाँ पर लाइव जो है ना उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पर शो होगी। उसके लिए हमें वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को लेटर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के साथ रब्ता करने की वो वाली चीज़ हमने कंप्लीटली जो है ना ओवरकम कर ली है। सही डाटा आपका तमाम वनरेबल्स का है या जिस पर जो आपने फीड किया हुआ है 6 लाख का जो बता रहे डाटा उसमें है? बोथ। इनिशियली जब हम 6 लाख का डाटा इंक्लूड होता है तो वो सारा का सारा डाटा यहाँ पर आता है। फिर अभी चले मैं डायरेक्ट उस पे जाता हूँ ताकि आपके क्वेश्चन ज़रा कम हो जाए। ये अगर आप देखें ऑडिट लॉगिन, जैसे ही हमारा डाटा ग्रुप सेक्रेटरी लॉगिन से इंटर हुआ तो ऑडिट वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है। हमारा एक कंप्लीट प्रोसेस वो हमने टाइम लाइन दी है ना कि पहले 1 महीने में आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के बाद अगले जो 3 महीने हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, अगले 3 मंथ्स जो है वो ऑडिट के लिए हमने रिजर्व कर देते हैं। तो फिर ऑडिट वाले लोग अपने ऑडिट डैशबोर्ड से मैंने क्वेश्चन ये कि ये 6 लाख के लोग भी मुस्तहिक हैं या और भी लोग मुस्तहिक हैं ज़कात के नहीं, लिए? और भी हैं, लेकिन जो ये ड्यूरिंग 3 इयर्स रजिस्टर्ड हुए ये उन लोगों की रिफ्लेक्शन है। अभी और जी हो सकते हैं वो सारे लोग। जी मैडम इसमें ऐसे कि जी ना बोले लोग हैं साथ जिन्होंने में apply किया। जी अब as per our हाँ, fund, लेकिन ये है कि अगर उसको let's साथ suppose रखना हम इनमें से जरूरी 2.5 है। लाख लोगों को देते हैं तो उसका अलग एक रिकॉर्ड है। ये एक इसी registered ऑडिट वाले ने वही जिसको लेने हम LZ-19 एक्सटर्नल ऑडिट उसमें वाला ने जितने भी हाँ। applicant आते हैं 2000 applicant तो मैं वही क्वेश्चन जो आपके पास आए वो सब इसके अंदर ये 6 लाख का फिगर applicants का है। इनमें से as per share जितना जिनका बनता जी है let's suppose 2.5 लाख लोग हैं तो वो फिर तो वो अलग जितने register फंड्स होंगे आप जी। उसमें distribute करेंगे आगे। और इन 6 लाख के हाँ, 6 लाख की जो है वो audit होती है। इसी तरह हमारी अपनी एक जी। इंटरनल एक ऑडिट टीम होती है वो बाकायदा इनको देखती है इनकी हार्ड और सॉफ्ट में मेंटेन करती है, फिजिकल विजिट करती है। बीएसपी बैतुल माल ईजी के साथ एप्लीकेशन की हम बात करते हैं, फिर उसके साथ जी, शेयर करते हैं 031 कि ये लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये वहाँ से भी लेना 542692 इस तो तरह के पेंडिंग केसेस कोई नहीं आ पाता जो है वो रजिस्टर्ड है जी जी। और एक टाइम होता है कि इस टाइम तक आप अपने आप को रजिस्टर करें, जो फिगर होगा उसमें वो ब्राउजर में ही है। जी 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 स्कोरिंग पैरामीटर्स होते हैं। उस तरह का है जो 20 लोगों का एक कमेटी आई है जिसमें 5 स्टूडेंट हैं, तो जो टॉप 5 होंगे वो सिस्टम शो कर देगा। ऑडिट स्टाफ जो है वो 20 के 20 ही करेगा। यही डाटा फ्लोटिंग बेस पे है ना। इन 5 में से भी कोई गलत बोल रहा है उसका स्कोर बंद भी रहा है वो रिजेक्ट होगा। अच्छा। तो नीचे से बंद आ जाएगा, तो जो टॉप 5 होंगे वो सिस्टम उसको निकाल के जिससे अच्छा ये अगर अभी आप सर ये डेटा को आप लोग कैसे वेरीफाई और ऑथेंटिकेट करते हैं? और ये अगर आप डेटा को जो आप लोगों को मिल जाता है उसको आप लोग कैसे ऑथेंटिकेट या वेरीफाई करते हैं? जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। और दूसरा एक और क्वेश्चन है इसके साथ कि ये जो डेटा आप लोगों ने कहा कि जी एक्सेस जो है तो जनरल पब्लिक को अब तक क्यों नहीं दी गई इसकी? अच्छा इसमें नंबर 1 जो आप ऑडिट का कह रहे हैं ना, जैसे मैंने कहा कि ऑडिट का क्राइटेरिया ये कि हमने एक इंटरनल ऑडिट स्टाफ इसके लिए हायर किया हुआ है, जो परमानेंट स्टाफ है डिपार्टमेंट के साथ, वो इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन भी करता है थ्रू सिस्टम भी जो है सॉफ्ट और हार्ड की जो कॉपी उसको दी जाती है वो भी नए उसके सिग्नेचर उसके सामने निशान जो लोकल कमेटी के स्टैंड्स हैं जो एफिडेविट्स हैं फिजिकल जाके अपने टीम के साथ जो है उसको देखते हैं क्योंकि वो भी लोकल का बंदा होता है थ्रू बीएसपी एजी और उनका जैसे मैंने कहा उनसे भी हम ये डेटा शेयर करते हैं कि आपके साथ कहीं ये एप्लीकेशन में नहीं आ रहे तो वो भी फिर हम उनके साथ शेयर करते हैं कि इसको फर्स्ट इंस्टेंस में हटा दें। सेकेंडली आपने जो क्वेश्चन किया अपना सॉरी हाँ वो ऐसा है कि फॉर एग्जांपल अभी हम इनिशियल स्टेज पे इस दौर में नहीं जा रहे हैं, हमारा फ्यूचर प्लान इंशाल्लाह है टुवर्ड ई सरकार एक बंदा अपने घर बैठे जो है वो अपने आप को रजिस्टर करेगा देन दैट ही और शी विल गो थ्रू दिस ऑल प्रोसेस और उसके बाद जो है जो डोनर्स होंगे या एंड यूजर होगा उसको भी बाकायदा जो गवर्नमेंट से हटके लोग होंगे और डिजर्विंग होंगे उनका डेटा भी उनको शो होगा दे कैन आल्सो हेल्प देम। अच्छा जी जी जैसे कोई बेनिफिशियरी है सपोज वो चाहे मेडिकल उसमें अपना ले रहा है जी जी गुजारा ना और डिसीज पर्सन जी जी उनके लिए प्रैक्टिस मोस्टली सुनने में आया है
कि लोग मर जाते हैं, उनके कत्ले लगे होते हैं, लेकिन वो गुजारा अलाउंस जी सही जी उसकी तरफ भी वो भी असल में टाइम बहुत थोड़ा है, लेकिन अब मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ प्लीज। उसके लिए आपके जो 2-3 क्वेश्चन है ना डाटा इंटीग्रेशन या क्रॉस वैलिडेशन की, वो इंशाल्लाह भी आगे क्लियर हो जाएंगे। जी बेसिकली देखें, अगर आपको मैं डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ ऑडिट ऑफिसर्स का। अब जो ऑडिट वाली बात की कि डाटा को वैलिडेट कैसे किया जाएगा, तो इनिशियली मैंने बताया था तकरीबन 100 लोग ऐसे हमारे पास ज़कात पेड एम्प्लॉइज़ हैं जो ऑडिट का कंप्लीट प्रोसेस करते हैं। जितने भी लोग जिस तरीके से एक्सटर्नल ऑडिट इस्लामाबाद वाले करते हैं, सेम प्रैक्टिस अडॉप्ट की जाती है हमारे इंटरनल ऑडिट के थ्रू। जो 100 उनके लिए अपना डैशबोर्ड है, तो उसके अंदर वो बाकायदा फिजिकली जाकर वहाँ पर जो लोगों का सिस्टम में एंट्री हुई है उसको चेक किया जाता है। कहा कि जो उन्होंने एक ऑप्शन घर कच्चा लिखा, तो आया वाकई उसका घर कच्चा है कि नहीं। उसने कहा कि मेरे पास माल मवेशी कोई भी नहीं है, तो वो फिजिकली वहाँ पर विजिट करते हैं हमारे ऑडिट ऑफिसर, उनको चेक करके देन उसको सिस्टम के अंदर वेरीफाई करते हैं। अब अगर आप देखें तो इस वक्त टोटल मुस्तकीन इस बंदे के पास इतने हैं, जिसमें से उसने इतने रिजेक्ट किए। तो ये बेसिकली उसने अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन या फिजिकल विजिट के बाद उसने जो चीज़ देखी उसके बाद उसने रिजेक्ट किया एंड बाकियों को अप्रूव किया। अब मैं थोड़ा सा मजीद आगे ज़रा चीज़ें स्किप करता हूँ, स्लाइड की तरफ आता हूँ, जिसके अंदर अभी मैडम का क्वेश्चन था कि क्रॉस उसके लिए जी इसको कैसे शेयर करेंगे। जी यही ऑडिट स्टाफ लोकल चेयरमैन उनसे एफिडेविट लेते हैं कि ये अभी नहीं रहा, इसके नेक्स्ट ऑफ किन को हम देना चाह रहे हैं, तो ही और शी शुड बी रिप्लेस्ड विद दैट। वो फिर हमें आती है कि हम क्वार्टर लेवल पे जो है बाकायदा उनको परमिशन देते हैं कि इस सीएनएक्सी को इस सीएनएक्सी के साथ रिप्लेस सही। एंड यू कैन देन गिव द पेमेंट। अच्छा, उसके लिए एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है मेरा। जी उसके लिए अगर आप देखें तो इस वक्त हमने डाटा इंटीग्रेशन के लिए जो हमारी वैसे ऑलरेडी कुछ कम्युनिकेशन हो भी चुकी है और करंटली चल भी रही है। हमने प्रीवियसली बीएसपी के साथ ऐसे लोग हमारे पास ओवरलैप्ड हुए थे, तकरीबन 10,000 हमने लोगों को रिजेक्ट किया था, क्योंकि जब हमने डाटा इंटीग्रेशन के थ्रू हमें पता चला कि ये लोग बीआईएसपी से भी ले रहे हैं। सेम लाइक बैतुल माल एंड अकाउंटिंग जनरल के साथ भी हमारी इंटीग्रेशन हो चुकी है, जिनके तहत हम जो ही डाटा हमारा इंटर होता है सिस्टम में, देन हम उस सिस्टम को क्रॉस मैच करते हैं इन 3 एंटिटीज के साथ। देन जो भी मैडम का क्वेश्चन था, हमने नादरा के साथ हमारी डिस्कशन चल रही है कि हम उनको ऑल जितने भी सीएनआईसी हमारे 6 लाख हैं वो हम उनके साथ मैच करवाएंगे। और देन जो हमारा करंटली सिस्टम चल रहा है उसके अंदर हम उनकी एपीआई डेवलप करेंगे। यहाँ से हमारा फील्ड क्लर्क एंट्री करेगा तो नादरा के डेटाबेस के साथ हिट करेगा उस सीएनआईसी को, और वहां से उसकी ऑथेंटिकेशन देखा आया कि ये बंदा जिंदा है या जन्नत में पहुंच चुका है। ठीक है, देन उसको हम आगे फिर प्रोसीड करेंगे। जी सही। जी सही। ठीक है, बेसिकली जो आप बात कर रही हैं उस तरह की ऑथेंटिकेशन हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है कि आप जो प्रोविंशियल लेवल के जितने भी 26 हॉस्पिटल्स हैं केपी लेवल के, उनमें से किसी एक हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो आपका रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। जैसे ही आप किसी दूसरे हॉस्पिटल की तरफ मूव करेंगे तो वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से आपको रेफर ही उस हॉस्पिटल को किया गया है। आप उस पे यानी कि जो प्रोसीजर ये है, पहले मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाऊंगा, वहां से मैं कहूंगा मुझे इस वक्त जो है ना वो खांसी है, मैंने इसकी मेडिसिन लेनी है, तो जी उसने कहा आप किस हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, जी किस हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड से उस हॉस्पिटल को रेफर कर दिया जाएगा। अब वो शख्स उस हॉस्पिटल के अलावा किसी हॉस्पिटल में अपना जी मैं वही जी 4,000 8,000 जी सही। जी बिल्कुल तकरीबन जी बिल्कुल सही। जी मैम बस 5 मिनट। अच्छा, इसका
पेमेंट मैकेनिज्म क्या है, कैसे पैसे कैसे जाते हैं? पेमेंट अभी करंटली हम जो है ना वो थ्रू ओपन क्रॉस चेक या ऑर्डर चेक दे रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर फ्यूचर प्लान देखें उसमें हमने ये चीज लिखी है कि हम उसको ई ज़कात की तरफ लेके जा रहे हैं। ई ज़कात? जी जी, ये अगर आप फ्यूचर प्लान देखें इसके अंदर हम ई ज़कात के थ्रू इजी पैसा, थ्रू एनी मोड ऑफ जो है ना वो पेमेंट है, माइक्रो फाइनेंसिंग, हम उसकी तरफ इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से हम ये काम लेकिन हम इजी पैसे से कैसे करेंगे? आपको वेरिफिकेशन चाहिए, कोई फिजिकल वेरिफिकेशन भी तो चाहिए डिस्बर्समेंट के लिए, पेमेंट डिस्बर्समेंट के लिए। डेफिनेटली It's a जब public money उसी ना। जी उसी के साथ हम नादरा को भी अटैच कर रहे हैं कि जो ही हमारे पास CNAC सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड होगा तो वो पहले नादरा से वेरीफाइड होगा। अगर वो CNAC एग्जिस्ट कर रहा है और एक्टिव है देन उस सिस्टम में आएगा। तो देन उसके बाद जब उसको एक बंदे को पेमेंट होगी उसके साथ अगर आप लास्ट में देखें तो हमने ग्रीवेंस GRM सिस्टम भी डेवलप कर रहे हैं, जिस सिस्टम के तहत बाकायदा हमें इजी पैसा वाले रिपोर्ट करेंगे कि आज के दिन में इतने CNACs ने पेमेंट ले ली है, तो उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास हमारे सिस्टम के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो उसकी वो क्रॉस वैलिडेशन वहां से हम उसको इंशाल्लाह कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है ना हम आइंदा के लिए जो है ना हम एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम अपने सिस्टम में डेवलप करेंगे जो हमें रियल टाइम डाटा मैनिपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। वो AI बेस्ड सिस्टम हम इसके साथ अटैच कर रहे हैं। देन इसी के साथ साथ हम आप सब लोगों ने मेरे हाल में चैट GPT यूज किया होगा, तो हम इस तरह का चैट बोर्ड डेवलप कर रहे हैं अपने ज़कात नेशनल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए। खास कोर्स में तो लाजमी आपने यूज किया होगा ठीक है, तो वो चैट बोर्ड बेसिकली ये करेगा उसके अंदर जो आज तक की आपने कोर्स के दौरान भी ये चीज पढ़ी होगी कि सबसे प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम ये है कि हम हर एक इंडिविजुअल की पॉवर्टी कैसे मेजर करें। तो उसके अंदर हम तकरीबन पाकिस्तान के एक पायलट बेसिस पे हम 2-3 डिस्ट्रिक्ट लेंगे, उनकी हर एक कम्युनिटी हर एक एरिया की इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालेंगे। तो आप जस्ट अपना बताएंगे कि मैं डिस्ट्रिक्ट तौरगार से और फलां मोहल्ले से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी एज इतनी है, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली उस पे पॉवर्टी कैलकुलेट करके आपको बता देगा। मेरा एक ई ज़कात के हवाले से क्वेश्चन है। जी जी, ई ज़कात के हवाले से आप उस पे जा रहे हैं, इसके अंदर एक जो प्रॉब्लम हमने देखा है जो फेस किया है हमने भी, उसको मैं पूछना चाह रहा हूँ आप कैसे कैटर करते हैं। ई ज़कात में जब हम पैसे ट्रांसफर करते हैं तो जिस बैंक को करते हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक है या वसीला है या इजी पैसा है, जो भी है, उनकी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है पैसे आपकी तरफ से चले गए, वो 5 दिन पैसे अपने पास रखते हैं, उसके ऊपर वो प्रॉफिट अर्न करते हैं और फिर आगे जाके देते हैं और वो ह्यूज होता है, उसको कैसे आप मैनेज करेंगे? असल में बेसिकली ये बात जो है ना हमने प्रीवियस ईयर जब उन लोगों के साथ डिस्कशन की तो हमारे पास डिस्कशन में ये बात आई थी कि उन्होंने कहा था कि हम ये रखेंगे, लेकिन हमारी काउंसिल ने उसकी अप्रूवल नहीं दी। लेकिन इन्हीं प्रॉब्लम्स को कैटर करने के लिए नेक्स्ट ईयर पे ये चीज़ डिले हुई है और फर्दर इसके ऊपर जमील साहब बता देते हैं। सर वो ई ज़कात का जो कॉन्सेप्ट हमारा है ना वो सिटीजन टू सिटीजन के सिलसिले में है। फॉर एग्जांपल एक शख्स है अब्रॉड बैठा हुआ है, वो सबसे पहले अपना ज़कात कैलकुलेट करके असेस करेगा थ्रू इसी सिस्टम कि मुझ पे कितनी ज़कात बनती है, और उसके साथ हमने जो है मुख्तलिफ मुफ्तीज़ के भी जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर लगाए होंगे। दिस इज़ आवर फ्यूचर प्लान, यह भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, आई वुड लाइक टू से दिस। तो वहाँ से जब उसको पता लग जाए कि मैंने इतनी ज़कात देनी है, देन ही और शी विल रजिस्टर हिमसेल्फ, किस डिस्ट्रिक्ट से है, किस तहसील यूनियन काउंसिल तक वो जाना चाहते हैं। उसके बाद उसको वो लिस्ट नज़र आएगी, उसमें से उनसे 3 ऑप्शन पूछे जाएंगे, आप डिपार्टमेंट में ये पैसे क्लब करना चाह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में करना चाह रहे हैं, या इस इंडिविजुअल को बजाते खुद देना चाह रहे हैं। तो उसका इजी पैसा अकाउंट या उसका एक्सेस एड्रेस उसको दे दिया जाएगा। जस्ट वी विल कीप अ रिकॉर्ड कि इस बंदे को जो हम ना दे सके क्योंकि फंड की कमी थी, उसको इतने पैसे इस फलाने CNAC की तरफ से आए। दैट इज आवर लाइक ड्रीम इंशाल्लाह। जस्ट वन, ये बेसिकली जी जी सही। जी जी, अब उसके लिए असल में यह एक बात वही आ जाती है कि हम यहाँ पर बाउंड हैं थ्रू एक्ट कि आपने फैमिली के अंदर एक ही बंदे को देने हैं, लेकिन उसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हम साथ उसको रेफर कर देते हैं अपने बाई डिपार्टमेंट जो हमारा सोशल वेलफेयर। तो ताकि जो एक बंदे को तो ज़कात से मिल गया कुछ ना कुछ, तो अब बाकी लोगों को हम सोशल वेलफेयर से किसी तरीके से जो है ना वो आदम साहब उसके ऊपर जो है डेफिनेटली डेफिनेटली जी जी